سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں سموگ اور دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے ٹھوکر نیاز بیگ اور بابو صابو سے ٹریفک کے لیے بند۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے پنڈی بھٹیاں اور موٹر وے M3 کو فیض پور سے سمندری تک بند کیا گیا۔ GT روڈ شاہدرہ بابو صابو ٹھوکر نیاز بیگ سمیت داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ CTO کی ہدایت پر ٹریفک وارڈنز کی اضافی نفری تعینات۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ مبین آگاہ کیجیے۔ کہ موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M3 جو ہے فیض پور سے سمندری تک جو ہے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے عوام کی حفاظت کے لیے محفوظ سفر کے لیے یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے دھند والی جتنی بھی لائٹس ہیں ان کے استعمال بھی یقینی بنانے کا کہا گیا ہے کہ فوگ لیمپس کے استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ سٹی لاہور نے یہ بھی کہا کہ کوشش کریں کہ جو دھواں دار گاڑیاں ہیں وہ روڈ پر نہ آئیں تاکہ نہ اپنے لیے مسائل کا سامنا کریں اور جو لوگ ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کریں۔ اس میں ساتھ ساتھ اسموگ کے والی گاڑیوں پر بھی کریک ڈاؤن جاری ہے تاکہ مزید اسموگ کا جو پھیلاؤ اس کو روکا جا سکے اور شہریوں کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ گھر میں رہنے کی تلقین بھی جو ہے حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ آپ کا شکریہ مبین۔ پنجاب میں اسموگ ایمرجنسی مکمل طور پر ناکام۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 455 ریکارڈ۔ شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 سے 3 روز تک بارش کی پیشگوئی بھی سامنے آئی ہے۔ دن بدن اسموگ بڑھتی جا رہی ہے جس کے باعث شہری مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ پنجاب میں اسموگ ایمرجنسی بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 سے 3 روز تک بارش کی پیشگوئی مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پنجاب میں اسموگ ایمرجنسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آج بھی آلودگی کے اعتبار سے شہر لاہور پہلے نمبر پر ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کو جو ہے وہ تاحال کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اگر بات کر لی جائے تو آج شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 455 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 500 سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ اسی طریقے سے بات کر لی جائے تو پنجاب بھر میں جو ہے وہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پنجاب کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 455 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بات کریں شہر کے مختلف علاقوں کی تو عامر ٹاؤن کے علاقے کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی 521 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 523 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 455 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں آئندہ 2 سے 3 روز میں بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ تدارک کے لیے دفعہ 144 عائد کر دی ہے۔ پنجاب کے 8 شہروں میں 144 جو ہے وہ دفعہ عائد کر دی گئی ہے، جس کے باعث یہی دیکھا جائے گا کہ لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال اور سیالکوٹ شہر میں پابندی کا اطلاق کروایا جائے گا۔ دفعہ 144 3 روز کے لیے نافذ کی گئی ہے۔ دفعہ 144 پر پابندی 10 نومبر سے 12 نومبر تک نافذ ہوگی۔ 8 شہروں میں فصلوں کی باقیات جلانے پر جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوڑا کرکٹ، پولیتھین گیس، پولیتھین کے جو بیگز ہوتے ہیں، شاپر ہوتے ہیں، پلاسٹک، ربڑ اور لیدر جلانے پر جو ہے وہ سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریسٹورینٹس، سینما، تھیٹر، کلب اور پارک کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ اور لاہور میں جو ہم ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں لاہور ہے فیسٹیول، اس پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ 3 روز تک جو ہے وہ بھی بند رہے گا۔ تو یہی دیکھا جائے گا کہ 10 نومبر سے لے کے 12 نومبر تک جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ شکریہ سامع۔ لاہور کے آسمان پر اسموگ کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت سمیت گجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال میں انوائرمنٹ پلس ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ نگران پنجاب حکومت نے 4 روز کی تعطیل کا اعلان کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔
स्मोक बन गई रोग। लाहौरियों को मुसलसल स्मोक के अजाब का सामना। मुतअद्दिद मरतबा शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से भी तजावज़ कर चुका है। इसमें जहां गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, फैक्ट्रियों और भट्टों की चिमनियों से खारिज होने वाला धुआं सितम ढा रहा है, तो वहीं भारतीय पंजाब में फसल की बाकियात को लगाई जाने वाली आग से उठने वाला धुआं सूरत हाल को मजीद खराब कर रहा है। स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर निगरान पंजाब हुकूमत भी परेशान। निगरान पंजाब हुकूमत का 4 रोज की तातील का ऐलान। 9 से 12 नवंबर तक तमाम स्कूल्स, मार्केटें और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर भी बंद होंगे। बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हाल खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लाहौर, गुजरांवाला, हाफसाबाद, नारोवाल में इन्वायरमेंट प्लस हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सब किस्म की स्मॉग है। जो ममालिक से बाहर के बेकरियां और फार्मेसीज खुली रहेंगी, वो बंद नहीं करेंगे। मेरी जो शादी घर खुले रहेंगे, पार्क्स तमाम किस्म के बंद होंगे। एंटरटेनमेंट वाले पार्क्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट वाले पार्क्स हैं, वो सारे के सारे बंद होंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे को। सिनेमा घर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो बंद होंगे। हेल्थ इमरजेंसी उसके साथ साथ हम उसकी भी SOPs फॉलो अनाउंस कर रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारक केस में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स 10 नवंबर तक तलब कर ली। अदालत ने ममनुआ ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन का भी हुक्म दिया। स्मोक का मसला गंभीर। पंजाब हुकूमत ने स्मोक एमरजेंसी नाफिज करने के बाद अब लाहौर समेत 8 शहरों में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने लाहौर डिवीज़न में 4 रोज़ के स्मार्ट लॉकडाउन का हिदायतनामा जारी किया। लाहौर फेस्टिवल की सरगर्मियाँ मुअत्तल। रिपोर्ट देखिए। हर गुजरते रोज के साथ स्मोक का मसला मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। स्मोक के तदारक के लिए पंजाब में दफा 144 नाफिज। निगरान पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट में दफा 144 का निफाज 3 रोज के लिए किया गया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने लाहौर डिवीजन में 4 रोज के स्मार्ट लॉकडाउन का हिदायतनामा भी जारी कर दिया। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी और फार्मेसीज खुली रहेंगी। बाकी हर किस्म के कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी कर सकेंगे। इधर शहर में जारी सकाफती सरगर्मियां भी स्मोक की नजर हो गयी। स्मोक में इजाफे पर PHA ने लाहौर फेस्टिवल की सरगर्मियां 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। फेस्टिवल दोबारा शुरू करने या न करने के हवाले से फैसला पीर को होगा। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन के दौरान 313 गाड़ियां बंद और 713 के चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने और ख़तरनाक हालत में चलने वाली लोडर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन के दौरान 313 गाड़ियाँ बंद और 713 के चालान किए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के लिए खसूसी टीमें तैनात। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज़ का मट्टी, रेत वगैरह ले जाने वाली गाड़ियों को मुकम्मल ढांपने का हुक्म। ख़तरनाक तरीके से सरिया लेकर जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। CTO ने हिदायत जारी कर दी। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि पंजाब में गंदम की कीमत का तयन भी IMF करेगा। आलमी इदारे की सिफारिश पर काबीना कमेटी गंदम की कीमत का हतमी फैसला करेगी। चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और डायरेक्टर फूड पंजाब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पंजाब हुकूमत के ऑफिसर IMF के नुमाइंदों से गंदम की कीमतों के तयन पर मुज़ाकरात करेंगे। पंजाब में गंदम की फ़ीमन इजराई कीमत 4300 से 4600 रुपये फ़ीमन रखने की सिफारिश। IMF नुमाइंदों की सिफारिशात पर काबीना कमेटी गंदम की कीमत का हतमी ऐलान करेगी। अगले चंद रोज़ के दौरान काबीना कमेटी के इजलास में गंदम की इजराई कीमत का फैसला होगा। महंगाई के सताए अवाम पर फ्लोर मिलर्स का भी राज। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा कर दिया गया। खुले आटे की फ़ी किलो कीमत में भी 10 रुपये इजाफा। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मज़ीद महंगा होने का खदशा। फ्लावर मिल्स ने महंगाई की बहती गंगा में हाथ धो लिए। आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सरकारी निर्ख का तयन न होने से ज़ख़ीरानदोज़ और मुनाफाखोर खुलकर खेलने लगे। चंद हफ्ते के इस्तेहकाम के बाद आटा फिर महंगा होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये इजाफा। आटे का थैला 2900 रुपये तक पहुँच गया। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। खुला सफेद फाइन आटा 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये फी किलो हो गया। खुला सुर्ख आटा 145 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। फ्लावर्स मिल मालिका ने नई कीमत पर स्टॉक फ्राहम करना शुरू कर दिया। अवाम कहते हैं कम अज कम आटे जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत पर तो काबू पाया जाए। आटा भी महंगा हो गया है और हर चीज़ ही महंगी हो गई है इस मुल्क में। तो बुनियादी ज़रूरतें जो है इंसान की, वो हर चीज़ हो रही है, अप्रोच से बाहर हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को ख्याल ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर सेट हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये आटा क्यों महंगा हो रहा है और चीनी क्यों महंगी हो रही है। हर चीज़ दिन ब दिन
अपनी हमारा गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। मार्केट राय के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख बढ़ने को आटा महंगा करने का जवाब बनाया जा रहा है। चंद रोज में गंदम की फीमन कीमत में 400 रुपए इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम 5300 रुपए फीमन हो गई है। मार्केट राय के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई कम, मुर्गी गोश्त 25 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 477 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 17 रुपये इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 317, परचून रेट 329 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल कम होती ब्रायलर की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस बार इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर गोश्त की जो खपत है वो तो कम है मार्केट में, लेकिन सप्लाई जो है उसमें मसनूई किल्लत पैदा की गई है ताकि जो कीमतें हैं वो बुलंद सतह पर रखी जा सकें। और यही वजह है कि आज सप्लाई जो है कम की गई और 25 रुपये फी किलो तक का इजाफा किया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत गुज़िश्ता रोज 452 रुपये फी किलो थी, जिसमें 25 रुपये का इजाफा करके आज 477 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह 17 रुपये फी किलो तक जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा हुआ। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 317, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 329 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अब जहाँ अंडों की कीमतों में जो है वो कोई रद्द बदल नहीं किया गया और अंडों की कीमतें सरकारी नरसामों में जो है 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपये की मुकर्रर की गई, जबकि परचून मार्केट में फी दर्जन जो अंडों की कीमतें शहरों से वसूल की जा रही हैं वो 340 रुपये फी किलो तक। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कम होती कीमतों में अचानक 25 रुपये का इजाफा जो है वो इंतजामिया के लिए लम्हा दिख है, क्योंकि इंतजामिया रोजाना सरकारी नरनामों का इजरा कर देती है, लेकिन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते। और यही वजह है कि अब मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई माफिया बेलगाम है, इंतज़ामिया नाकाम है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां और 5 फल मजीद महंगे। अदरक 800, लहसुन 660, टमाटर 230, प्याज 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, मटर 380, अरवी 160, आलू 130, शिमला मिर्च 120 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी है। अनार बदाना 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 380 रुपये फ़ी किलो, केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दो में 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई माफिया बेलगाम है, जबकि इंतज़ामिया इस हवाले से इकदाम करने से कासिर है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, उसमें जो 5 सब्जियां उनकी कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज टमाटर की कीमतें जो है गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगी हैं। प्याज आज 5 रुपये महंगा करके 125 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत में 15 रुपये का इजाफा किया गया, 180 रुपये फी किलो टमाटर मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में टमाटर की फरोख्त 220 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह लहसुन चाइना 10 रुपये महंगा करके 520 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 660 रुपये फी किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियां की कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें खीरा 5 रुपये महंगा करके 55 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पालक 2 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन 160 रुपये फी किलो तक की जा रही है। फलों के सरकारी रेट में भी 5 फल जो है आज महंगे किए गए। सेब काला किलो 40 रुपये महंगा करके 260 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला बचा वही 5 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 160 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। अनार बदाना 10 रुपये महंगा करके 550 रुपये सरकारी रेट, जिसमें मार्केट में 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 200 रुपये फी किलो तक अमरूद की फरोख्त की जा रही है। जापानी फल 5 रुपये इजाफे के बाद 155 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन जापानी फल की फरोख्त 250 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नरनामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहते हैं MQM पाकिस्तान से मिलकर मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने की जिद्दोजहद करेंगे। शहबाज शरीफ बोले, मुस्तकबिल में MQM के इश्तराक से कराची और सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। दोनों जमातों का नए सिरे से सियासी रिश्ते उस्तवार करने का फैसला।
खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ्द की लाहौर आमद। वफ्द ने मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी क़यादत से मुलाकात की। वफ्द से मुलाकात करते हुए नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मिलकर मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने की जद्दोजहद करेंगे। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि 16 माह की मखलूत हुकूमत में MQM ने बड़े भरपूर और मस्बत अंदाज में साथ दिया। मुस्तकबिल में MQM के तामुन और इश्तराक से कराची और सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार का इस मौके पर कहना था कि सियासतदानों को बातचीत के दरवाजे खोलने होंगे। पाकिस्तान जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, कोई एक सियासी जमात अकेले उनको हल नहीं कर सकती। कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराकी अमल इख्तियार करना है। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का बाहमी इख्तलाफी नुकात को भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला। MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बाकायदा दावत दी। MQM पाकिस्तान दीगर जमातों से इब्तदाई रवाबित करके मुस्लिम लीग नून को आगाह करेगी। वफ्द ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ाने की तजवीज़ भी दी। नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकज के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जो आइंदा 10 रोज में क़यादत को आगाह करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान किया। कमेटी के अरकान की तादाद 33 है। मंशूर कमेटी में 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। मंशूर कमेटी में 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी को बनाया गया है। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्रम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर। मरियम औरंगज़ेब, राना एहसान अफसल, मुसद्दक मलिक, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह कमेटी अरकान में शामिल। पीर साबिर शाह, इख्तियार वली, खेलदास कोस्तानी, बशीर मेमन भी मंशूर कमेटी का हिस्सा हैं। राहिला दुरानी, उस्मा बुखारी, नासिर महमूद, कामरान माइकल, राना मशहूद खान भी कमेटी के रुकन हैं। बशीर मेमन को मुस्लिम नून सूबा सिंध का सदर जबकि शाह मोहम्मद शाह को नायब सदर मुकर्रर किया गया है। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। बलोचिस्तान में कांगो वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने चेक पोस्टों पर दूसरे सूबों से आने वाले जानवरों को लाजमी स्प्रे करने की हिदायत की है। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद ने हदायत की कि चेक पोस्टों पर महकमा लाइफ स्टॉक का अमला लाजमी मौजूद रहेगा। महकमे की जानिब से फ्री स्प्रे के बेनर जावेज़ा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के दफ्तर में मॉनिटरिंग का अमल जारी। इब्राहिम मुराद का कहना है कि सबको मिलकर इस खतरनाक वायरस का मुकाबला करना है। महकमा लाइफ स्टॉक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना रहा है। डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद वापस ना लौटने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का फैसला। आइंदा 72 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए जाने का इम्कान है। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। निगरान हुकूमत का सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए सख्त इकदामात करने का फैसला। डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद वापस न जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून की पासदारी न करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस ज़मन में पंजाब के पुलिस अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। IG पंजाब के हुक्म पर अमल करते हुए लाहौर पुलिस के अफसरान की जानिब से तमाम डिविजनल SPs, ऑपरेशंस विंग के SDPOs और SHOs को हिदायत जारी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 72 घंटों के दौरान लाहौर में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए जाने का इम्कान है। लाहौर में अधूरे पड़े बड़े मंसूबों की भी सुनी गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और बुज़दार अदवार के अधूरे मंसूबे मुकम्मल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। रवां 4 माह के बजट में ही तरक्याती मंसूबों के लिए कसीर रकम मुख्तस कर दी गई। गुज़िश्ता 7 बरसों से लाहौर के कई मेगा प्रोजेक्ट्स अधूरे। शहबाज शरीफ दौर में कई मंसूबों पर तामीराती काम का आगाज किया गया। उस्मान बुज़दार के दौर में भी कई मंसूबे शुरू हुए। ईवानों में तब्दीली आने से ये मंसूबे रुक गए। अधूरे मंसूबे मुकम्मल करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत ने प्लान बना लिया। तरक्याती मंसूबों को 4 माह के रवां बजट में ही मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कसीर रकम मुख्तस कर दी। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए मुख्तस। गुलबर्ग ता वाल्टन रोड सिग्नल
फ्री कॉरिडोर के लिए 1 अरब 43 करोड़ रखे गए हैं। बाबू साबू नियाजी इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर 8 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कान्हा के लिए 1 अरब 27 करोड़ रुपए मुख्तस। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्जाजार की तकमील पर 2 करोड़ 45 लाख खर्च होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंहपुरा के लिए 38 करोड़ 32 लाख रुपए रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से LDA के शोबा इंजीनियरिंग को इन तमाम मंसूबों को 4 माह के अरसे में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि खालिद बट चौक अंडरपास को जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे की तकमील से योमिया 1,80,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सुबह सवेरे खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर और रहीम हसन मुराद भी उनके हमरा थे। खालिद बट चौक अंडरपास का 90% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया और काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडरपास को इसी माह के वस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने मंसूबे के इतराफ़ ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग के लिए DGPH को हिदायत भी जारी की। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन अब शहरियों के घरों की दहलीज पर होगी। महकमा एक्साइज ने तमाम तैयारी कर ली। मंसूबे का आगाज़ आइंदा हफ्ते होगा। महकमा एक्साइज का शहरियों की सहूलियात के लिए बड़ा इकदाम। व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की सहूलत अब घरों की दहलीज पर फराहम की जाएगी। एक्साइज का अमला शहरियों से घरों में जाकर दस्तावेजात वसूल करेगा। इस मौके पर सारिफ की बायोमेट्रिक भी की जा सकेगी। महकमा एक्साइज लाहौर ने इस मकसद के लिए खसूसी गाड़ी और मोटरसाइकिलें तैयार कर लीं। डायरेक्टर मोटर्स मोहम्मद आसिफ का कहना था कि इब्तदाई तौर पर लाहौर से मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर शहरी दरख्वास्त रजिस्टर करवा सकते हैं। हमने एक डेडिकेटेड नंबर दिया जिस पे शहरी अपॉइंटमेंट लेंगे और हमारा स्टाफ जो है वो 10 मोटरसाइकिलों पे पूरे शहर लाहौर में शहरियों की दहलीज पे जाके गाड़ी रजिस्टर्ड करके मौके पे बायोमेट्रिक वगैरह करके दे के आएगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए फ़ीस ऑनलाइन जमा होगी, जिसके बाद गाड़ी शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। लेस्को ऑफिसर्स रिकवरी और बिजली चोरी की रोकथाम से मुतल्लिक मीटिंग्स में मसरूफ़। रिकवरी और इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के बायस दीगर तमाम काम अल्तवा का शिकार। सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। लेस्को की रिकवरी मुहिम ने बिजली सार्फिन को खार करके रख दिया। सर्कल्स के हेड रॉड्समैन मीटिंग का डाटा इकट्ठा करने में मसरूफ। नए कनेक्शन, नेट मीटरिंग और CRC केसेस 2 माह से इल्तवा का शिकार हैं। लेस्को सार्फिन सर्कल्स और डिवीजन के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सेक्टिव पावर डिवीजन को ब्रीफिंग देने के लिए दिन में 3 मीटिंग्स शेड्यूल होती हैं। तमाम XCN रोजाना SDOs और SCs तमाम स्टाफ से शाम 6 बजे तक मीटिंग करते हैं। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज, चीफ एग्जीक्यूटिव रिकवरी बिजली चोरी बारे 2 घंटे मीटिंग में रहते हैं। तमाम स्टाफ की मसरूफियात के बायस दीगर काम इल्तवा का शिकार रहते हैं। सुपरिटेंडिंग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी सार्फी के सामने बेबसी जाहिर करते दिखाई देते हैं। लेस्को फील्ड अफसरान का कहना है कि गैर जरूरी कामों की वजह से सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन नहीं रहा। रात 11 बजे तक मीटिंग चलती हैं। इस सूरत हाल में तमाम अफसरान भी परेशान हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। यूँ तो शहर में बेशुमार सड़कों और गलियों का बुरा हाल है, लेकिन वाल्टन रोड की हालत कुछ ज़्यादा ही अबतर है। सड़क गंदे नाले का मंजर पेश कर रही है। टूटी फूटी रोड, उस पर सीवरेज के जमा पानी का आजाब। वाल्टन रोड नाले का मंजर पेश करने लगा। पैदल चलना तो महाल है, गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले भी फंस कर रह जाते हैं। वाल्टन रोड से कैंची स्टॉप तक बुरा हाल। स्कूलों को जाने वाले बच्चों की परेशानी और भी ज्यादा है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होना भी मामूल बन चुका। रही सही कसर गंदगी और उससे फैलने वाली ताफुन ने निकाल दी है। रिहायशियों के साथ वाल्टन रोड से गुजरने वाले दीगर शहरी भी अजियत में मुब्तला हैं। काफी अरसा हो गया, कोई इसकी सूरत हाल नहीं है। इतना गंदा है, ना गवर्नमेंट को पता है कि हमारे क्या हालात। देखें, हम डूब के आए हैं और जैसे तैर के आए हैं गटरों से। इतना पानी है, ना नाले का हल हो रहा है, जिधर भी जाओ पानी पानी है, ना उस रोड दे ना इस रोड दे। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने मसाइल से निजात ना दिलाई तो शदीद एहतजाज पर मजबूर होंगे। LDA इंतजामिया जायदादों का तखमीना लगाए बगैर फ़रोख्त करने में मसरूफ़। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए। फ़ंड्स मुख्तस करने के बावजूद जायदादों का तखमीना नहीं लगाया जा सका। LDA इंतज़ामिया के पास कितनी मालियत की जायदादें हैं? 48 बरस गुजर गए मगर तखमीना नहीं लगाया जा सका। LDA इंतज़ामिया जायदादों का तखमीना लगाए बगैर ही फ़रोख्त करने में मसरूफ़। जायदादों का तखमीना न होने से LDA ज़ाती वसाइल से मनसूबे शुरू करने में तजब्जुब का शिकार। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मनसूबे बनाए गए। गुज़िश्ता 5 बरसों में फ़ंड्स मुख्तस करने के बावजूद जायदादों का तखमीना नहीं लगाया जा सका। LDA का शोबा हाउसिंग को असासों की फहरिस्त बनाने का हुक्म दिया गया। वर्किंग ग्रुप को जायदादों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत।
सहूलियात। LDA का शोबा हाउसिंग असासों का तखमीना लगाने में नाकाम। अथॉरिटी ने निजी फर्म की खिदमात भी हासिल की, लेकिन जायदादों का तखमीना लगाने में कामयाबी नहीं मिली। LDA इंतजामिया का कहना है कि निजी फर्म्स जायदादों के तखमीने पर काम कर रही है, जबकि LDA भी इसका रिकॉर्ड मुरतब करने पर मसरूफ है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। लेस्को की इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को 2 माह मुकम्मल हो गए। मुहिम के दौरान अब तक 11,924 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों को 1,92,41,75,000 रुपये के डिटेक्शन यूनिट डाले गए। तर्जमान लेस्को का कहना है कि 23,796 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी मुकदमात की दरख्वास्तें दी गई। बिजली चोरों को 4,55,70,998 यूनिट्स चार्ज किए गए। चार्ज किए यूनिट्स की मालियत 1,92,41,75,000 रुपये है। सत्तू कतला में एक शहरी को बिजली चोरी पर 5 लाख रुपये जुर्माना किया गया। 24 घंटों के दौरान रीजन भर में कुल 247 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 174 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। तमाम 247 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। एक्सपो सेंटर लाहौर में डेयरी एशिया एक्सपो 15 नवंबर से शुरू होगी। एक्सपो में मुकामी सनतकारों के साथ 15 से ज़ायद ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद से डेयरी एशिया एक्सपो की टीम ने मुलाकात की। टीम ने सूबाई वज़ीर को 15 नवंबर से शुरू होने वाली नुमाइश में शिरकत की दावत दी। इब्राहिम हसन मुराद को बताया गया कि एक्सपो सेंटर लाहौर में डेयरी एशिया एक्सपो 15 नवंबर से शुरू होगी। एक्सपो में मुकामी सनतकारों के साथ 15 से ज़ायद ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। डेयरी एशिया एक्सपो 2023 में 50,000 से ज़ायद मंदोबीन की शिरकत उम्मीद है। 8वीं थल डेजर्ट रैली 9 से 12 नवंबर को शुरू होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। 200 किलोमीटर थल डेजर्ट रैली कोट अद्दू और लिया के अजला में मुनक़िद होगी। थल डेजर्ट रैली की ट्रॉफ़ी की तकरीब रूनुमाई आज होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रैली के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने की हिदायत भी सामने आई है। थल डेजर्ट रैली के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 8वीं थल डेजर्ट रैली 9 से 12 नवंबर को शुरू होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी है। 200 किलोमीटर थल डेजर्ट रैली कोट अद्दू और लिया के अजला में मुनक़िद होगी। थल डेजर्ट रैली की ट्रॉफ़ी की तकरीब रूनुमाई आज होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रैली के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने की हिदायत सामने आई है। थल डेजर्ट रैली के हवाले से आपको ये बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इक़दामात करने की हिदायत भी जारी की हैं, जबकि ट्रॉफ़ी की तकरीब रूनुमाई भी आज होगी। 8वीं थल डेजर्ट रैली 9 से 12 नवंबर को शुरू होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी है। 200 किलोमीटर थल डेजर्ट रैली कोट अद्दू और लिया के अजला में मुनक़िद होगी। थल डेजर्ट रैली की ट्रॉफ़ी की तकरीब रूनुमाई आज होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रैली के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने की हिदायत भी सामने आई है। थल डेजर्ट रैली के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 8वीं थल डेजर्ट रैली है ये, और ये 9 से 12 नवंबर को शुरू होगी, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से मंजूरी भी दे दी है। 200 किलोमीटर थल डेजर्ट रैली कोट अद्दू और लिया के अजला में होगी। थल डेजर्ट रैली की ट्रॉफ़ी की तकरीब रूनुमाई भी आज होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रैली के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने की हिदायत भी सामने आई है। इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी तब्दीली, तलबा को मज़ीद मेहनत करना होगी। अब पास होने के लिए 33% की बजाय 40% नंबर हासिल करने होंगे। तालीमी बोर्ड्स के लिए ग्रेडिंग फार्मूला भी जारी। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीली कर दी। अब पास होने के लिए मजीद नंबर लेना होंगे। 33 की बजाय 40 नंबरों वाला उम्मीदवार पास होगा। अगले तालीमी साल से 11वीं और 9वीं जमात से नए निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन डॉक्टर गुलाम अली का कहना है कि अगले साल से नंबरों की बजाय ग्रेडिंग निज़ाम भी नाफिजुल अमल होगा। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। तालीमी बोर्ड के ग्रेडिंग फार्मूला के तहत 95 से 100% नंबर पर 5 GPA मिलेगा और ग्रेड AA होगा। 90 से 95% नंबर्स पर 4.7 GPA मिलेगा और ग्रेड A+ होगा। 90 से 85% नंबर्स पर 4.3 GPA और ग्रेड A दिया जाएगा। 85 से 80% नंबर्स पर 4 GPA और ग्रेड BB होगा। 80 से 75% नंबर्स पर 3.7 GPA मिलेगा और ग्रेड B+ होगा। 75 से 70% नंबर्स पर GPA 3.3 और B ग्रेड मिलेगा। 70 से 60% पर GPA 3.0 होगा और C ग्रेड मिलेगा। 60 से 50 पर CGPA 2 होगा और ग्रेड D होगा। 50 से 40 पर GPA 1 होगा और ग्रेड E मिलेगा। 2024 से नए निज़ाम को नाफिज करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।